Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continue for KVS PGT English and last time we could complete A.R. Williams' work, and that is discovering TET, and today we are going to be with the next word, and here is Edward James, popularly known as Ted Hughes. With his poem, The Laburnam Top. Okay, we will study the poem, the poet, with a little bit its detailing. But before that, we have to go through the question session from the former lessons that we have already studied. And here we go with the first question of the day. What was the academic name during childhood of Khushwant Singh? What was the academic name of Khushwant Singh as a child or in a school? I repeat the question. What was the childhood name of Khushwant Singh in a school as a child? That's the first question of the day. Okay, thank you, Vinita. But my question is not about a school. The question is about the name of the writer. And we have the answer here from Gyaneshwar. It's followed by Subhash and Vinita. They have all answered it correct. To be Khushal Singh. Okay, going with the next. What was the name of the mother of Khushwant Singh? Father of Khushwant Singh. What was the name of the father of Khushwant Singh? And we have the answers there on the screen, coming from Gyaneshwar, followed by Vinita, Subhash, Sachin. They have all answered it correct. And the right answer is Sir Shobha Singh. Sir Shobha Singh was the name of the father of Khushwant Singh. Moving with the next. What does mean the phrase, "My grandmother accepted her seclusion with resignation"? What does it mean by the statement, "My grandmother accepted her seclusion with resignation"? I repeat, what is the meaning or sense of the statement, "My mother accepted her seclusion with resignation"? My mother accepted her seclusion with resignation is actually a statement related to grandmother from the story, The Portrait of a Lady. And my question is, what is the meaning of this statement? My mother accepted her seclusion with
resignation. Try to give the meaning of the statement. What does it mean by my grandmother accepted her seclusion by resignation, with resignation? Okay, that's a good effort, Ganeshwar. Exactly, it means grandmother herself decided to leave them aside and start living her own life without any complaint, and she started engaging herself and especially her time more with the sparrows, which she used to feed in afternoon and for half an hour daily. So this is what the meaning of this statement is there. Going with the next. When was the portrait of lady published? When was the portrait of lady by Khushwant Singh published? Sachin, just check your reply, dear. Okay. So we have answer here on the screen from Sachin. He's answered it correct, followed by Vinita, and the right answer is 2009. In 2009, the portrait of lady by Khushwant Singh was published, and it had actually attracted the whole world, especially with the similarity of its title to one of the poems by T.S. Eliot and one of the famous novel around the world from Henry James. So that becomes actually very special, and a special craftsmanship from Khushwant Singh as well that you can see. Okay, what's the complete name of Shirley Tolson? What is the complete name of Shirley Tolson? Okay, thank you, Vinita. Well, so we have the answer there on the screen coming from Sachin. It's followed by Ganeshwar, and they have answered it correct to be Kathleen Shirley Tolson. Now it is Vinita, and Subhash has also answered it correct. That's the Kathleen Shirley Tolson, the complete name of Shirley Tolson, the poetess who composed the poem A Portrait. Going with the next. What was the name of the British archaeologist who started discovering the mummy of Tut in 1922? What was the name of British archaeologist who started discovering or exploring the mummy of Tut in 1922? The name of the British archaeologist. Radhe Radhe Tulsi. Okay, and we have the answers there on the screen. That comes from Sachin. That's not a complete one. Exactly, you changed your answer. That's good. And followed by Subhash. No, Vinita, not that. It's Howard Carter. Howard Carter was actually the British archaeologist who in 1922 started exploring the mummy of Tut, and he had done some damages to the mummy of Tut as well, and mostly they were attracted to the treasures that were placed with the mummy. And later on this was actually complained by the later researchers and archaeologists, Zahi Hawass. Okay, going with the next. What was the depth of the grave where the body of Tut was engraved? What was the depth of the grave where the body of Tut was engraved?
Okay, and we have the answers there on the screen. That goes with the reply of Sachin, followed by Ganeshwar, Vinita, Subhash. They have all answered it correct, and the right answer is 26 feet. Where do you find the line? Where do you find the line? There is nothing to say at all. It's a silence, silences. I repeat, there's nothing to say at all. It's silence, silences. Which work has this line? Which work has the line? There is nothing to say at all. It silences. Where is the line? And we have the answer there on the screen coming from Ganeshwar. No, Vinita, that's a mistake. Followed by Subhash, Sachin. They have all answered it correct. The right answer is a photograph. Okay, that's a good one. A photograph is the name of the poem that has the ending line. There is nothing to say at all. It's silence, silences. Okay, going with the next. What's the number of lines used in the first stanza of the poem A Photograph by Shirley Tolson? What's the number of lines used in the first stanza of Shirley Tolson's poem A Photograph? Number of lines used here. And we have the answers there on the screen coming from Sachin, followed by Ganeshwar, Vinita, Subhash. They have all answered it correct. The right answer is 9 lines. Okay. We move with the next one. When did Khushwant Singh return his Padma Bhushan? When did Khushwant Singh return his Padma Bhushan? And we have some answers. Return, Ganeshwar, not received. Okay, and we have the answers here from Sachin, is followed by Vinita, Ganeshwar, Subhash. They have answered it correct, and the right answer is now it's Ramashankar. He has also answered it correct to be 1984. He returned his Padma Bhushan that he received in 1974. Okay. What's the name of the wife of narrator in the story We Are Not Afraid to Die? What's the name of the wife of the narrator in the story We Are Not Afraid to Die? Well, so we have the answers there on the screen from Ganeshwar, is followed by Sachin, Vinita, Ramashankar, Subhash. They have all answered it correct. The right answer is Mary. Exactly. Mary is the wife of the narrator from the story We Are Not Afraid to Die by Gordon Cook and Ellen East. God bless you, Devin. Moving with the next. What was the length and weight of Wave Walker as the boat of the narrator from the story We Are Not Afraid to Die? What was the length and weight of the Wave Walker, a boat used by narrator for his world voyage in the story We Are Not Afraid to Die? Okay, and we have the answer there on the screen. Coming from Ganeshwar, is followed by Vinita, and they have
answered it correct. It's not 24, Rama. It's actually 23 meter in length, and that is 30 ton. That is the weight. Okay, continue with Sachin, Subhash, Devendra. They have all answered it correct. And the right answer is 30 ton as a weight and 23 meter it's a length. Okay. What is the time setting of the story We Are Not Afraid to Die? What is the time setting of the story We Are Not Afraid to Die? We Are Not Afraid to Die, and you will have to tell the time setting of the story. And we go with the answers there on the screen, starting with Sachin, somewhat with Ganeshwar. Here is Vinita. They have answered it correct. Now it's Subhash. The right answer is 1976. It was July that the narrator with his wife, son and a daughter started his selling from Plymouth, England. Okay. What is the meaning of the phrase honing our seafaring skills? I repeat, what's the meaning of the phrase honing our seafaring skills from the lesson We Are Not Afraid to Die? Honing our seafaring skill. What is the meaning of the phrase from the story? Okay, and the answers are there on the screen from Sachin. Okay, testing not only wave walker Ganeshwar, testing his own skill as well. So that is somehow improving the navigation skill that was on the sea by the narrator there. Okay. Whose head was swollen alarmingly in the story We Are Not Afraid to Die? Whose head was swollen alarmingly in the story We Are Not Afraid to Die? We are not afraid to die, and we have the character whose head was actually swollen with a very bad hit. So you will have to tell whose head was swollen there. And we have the answer coming from Ganeshwar, followed by Sachin. Okay, Ganeshwar. Devendra, Rama Shankar, Vinita, Subhash, they have all answered it correct. The right answer is Suzanne or Sue, the daughter of the narrator, had her head swollen alarmingly. We have the next question. What does this phrase mean? A tousled head appeared by my bunk. I repeat, what does it mean? A tousled head appeared by my bunk. From the story We Are Not Afraid to Die. I repeat, what's the meaning of the phrase a tousled head appeared by my bunk? From the story We Are Not Afraid to Die. A tousled head appeared. I think you guys are missing.
Actually, this is the incident on 6th January that the two, no, actually, that's not Ganeshwar. Actually, the tousled head appeared by my bunk was related to the heads of Sue and Jonathan, and they come to the narrator around 6 p.m. on 6th January to hug him, to thank him for he could save their life and they could reach Isle Amsterdam and were almost safe. So tousled head could appear by my bunk is actually symbol of happiness and surprise to the narrator as well, with the appearance of Sue and Joe by him. Okay, going with the last question of the day. Who is the writer of the story Discovering Tut, the saga continues? Who is the writer of the story Discovering Tut, the saga continues? Okay, and now we are here moving with the stranger. Okay, and the answer actually that starts with Sachin, followed by Vinita, Subhash, Ganeshwar, Mamta. They have all answered it correct, and the right answer is A.R. Williams is the writer of the story Discovering Tut, the saga continues. And now it's time for us to move to the next, and that would be a bit of description related to Ted Hughes and his contribution to British literature. Okay, Ted Hughes, whose name as you see was Edward James Hughes and was known with his nickname Ted. So it's Edward James Hughes with his nickname, and as the British poet, he was British poet and especially children's writer, born on 17th August 1930. 17th August 1930, he was born. Birth of the poet Edward James Ted Hughes, and he was man who could be appointed the poet laureate in 1984. Poet laureate in 1984. He actually was the second choice for this post. Second choice. मतलब पहले इनको पोएट लॉरिएट बनाने का प्लान नहीं था. इनके पहले फिलिप लार्किन जो पोएट थे उनको माना जाता था कि उनको होना चाहिए. फिलिप लार्किन was the first choice for the post, but फिलिप लार्किन ने इसको डिक्लाइन कर दिया था. डिक्लाइन द पोस्ट. और उसके बाद क्योंकि फिलिप लार्किन ने इसको डिक्लाइन कर दिया, सो सिंपली पोएट लॉरिएट के लिए दूसरे ऑप्शन टेड ह्यूज रहे, जो अपनी डेथ तक 28 अक्टूबर 1998 तक कंटिन्यू रहते हैं. 28th October 1998, that's the death time of the poet, and till then he was the poet laureate of British literature. 2008 में
द टाइम्स ने द टाइम्स मैगजीन ने 2008 में टेड ह्यूज को 1945 के बाद 50 पोएट्स में से 4th रैंक दिया था, 4th ग्रेट पोएट आउट ऑफ 50 पोएट्स। मीन्स 1945 से लेकर के अभी तक के जो पोएट्स थे उनमें से इनको 4th रैंक द टाइम्स मैगजीन ने 2008 में दिया हुआ था। ही गॉट मैरिड टू सिल्विया प्लाथ इन 1956, married to Sylvia Plath as the poet of Poetess of America. In 1956, he got married to her, and the work birthday letters this is special actually, the last poetic work of his. And this last poetic work of his explores the relation between Sylvia Plath and the poet Ted Hughes. Sylvia Plath as a wife could not live long with him, and just 7 years later in 1963 she suicided. And even though her inspiration could not be forgotten by Ted Hughes, in 1959 he won the Galbraith Prize. The Galbraith Prize he could win in 1959, and he could produce his most important work, that's The Crow, in 1970. Crow 1970 में आती है और ये इनका सबसे फेमस कलेक्शन माना जाता है, पॉसिबली मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ टेड ह्यूज। और ऐसा भी लगता है कि इस पोएम के बाद ही टेड ह्यूज एज अ पोएट दुनिया के सामने स्टैब्लिश होते हैं एज अ पोएट के रूप में, क्रो 1970 से। टेड ह्यूज जब पोएट बने थे तो उसके पहले जॉन बेसमैन थे जो पोएट लॉरिएट थे। जॉन बेसमैन को रिप्लेस किया था टेड ह्यूज ने, क्योंकि 1984 में जॉन बेसमैन की डेथ हो जाती है और उसके बाद ही टेड ह्यूज यहाँ पर होते हैं। 1971 में द लंदन मैगजीन को इन्होंने इंटरव्यू दिया था। द लंदन मैगजीन 1971 में टेड ह्यूज ने अपना इंटरव्यू दिया था और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनके ऊपर पोएटिक इन्फ्लुएंस किसके किसके हैं। स्पेशली पोएटिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात किया था कि कौन कौन पोएट थे जिन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया था, इनके ऊपर प्रभाव रखा था। और उसमें इन्होंने कई बड़े नाम लिए, जैसे विलियम ब्लेक, जॉन डन, टी.एस. एलियट,
ऐसे बड़े पोएट्स के नाम लिए जिनके इन्फ्लुएंस में वो रहे अपनी राइटिंग में। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जी.एम. हॉकिंस का भी असर उनके ऊपर राइटिंग में साफ तौर पर दिखता है। एंड along with that, he worked for 10 years on a prose poem named Godet. Godet was actually his prose poem. और ये गॉडेट पर उन्होंने 10 इयर्स तक वर्क किया। 10 साल तक उन्होंने गॉडेट पर वर्क किया और वांटेड दैट दिस पोएम शुड बी एक्चुअली फिल्म्ड, बट ऐसा हुआ नहीं। दिस वाज हिज ओन विश दैट द पोएम गॉडेट शुड बी फिल्म्ड। Okay, 2009, after almost 10 years of his death, 2009 में टेड ह्यूज के नाम से या टेड ह्यूज के सम्मान में एक सोसाइटी स्टैब्लिश की जाती है स्पेशली फॉर पोएट्री, द टेड ह्यूज अवार्ड 2009। The Ted Hughes Award 2009 में स्टैब्लिश की जाती है। ये स्पेशली टू ऑनर एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज, इनके सम्मान में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। गुड मॉर्निंग सुमन एंड खुशबू। या रमाशंकर कमिंग बेटा। ओके, और जैसे मैंने कहा कि 2009 में टेड ह्यूज अवार्ड स्टैब्लिश किया जाता है एंड इसके लिए उन्होंने कैरोल ह्यूज से परमिशन भी लिया था। दी पोएट्री सोसाइटी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। दी पोएट्री सोसाइटी का स्टेटमेंट जो टेड ह्यूज पर था, प्लीज राइट डाउन। द अवार्ड इज नेम्ड इन ऑनर, द अवार्ड इज नेम्ड in honor of Ted Hughes. The award is named in honor of Ted Hughes, comma, poet laureate, comma, and one of the greatest 20th century poets, one of the greatest 20th century poets for both children and adults, children and adults। ये पोएट्री सोसाइटी ने स्पेशली टेड ह्यूज अवार्ड को स्टैब्लिश करके 2009 में अपने रीज़न को क्लैरिफाई किया था कि क्यों उन्होंने इस अवार्ड को शुरू किया है, टेड ह्यूज अवार्ड फॉर द पोएट्स। And as we see, the Laburnam top is a poem of 4 stanzas. But एक अलग सी स्टेंजा पैटर्न जैसा हमेशा से ही टेड ह्यूज करते आते हैं, with a variety of lines. The first stanza we go with just 3 lines. First stanza, there are 3 lines. The second stanza is the largest with 9 lines.
Second stanza is the largest with 9 lines. We go with the third stanza, again a very shorter one. Third stanza, there are just 2 lines in the third stanza, and the shortest one is the fourth stanza with a single line. Fourth stanza is the shortest with a single line only. So overall, if you go, the poem contains 15 lines in all. The length of the poem is 15 lines in all. 4 stanzas in 15 lines, going with the 3, 9, 2, 1. That would be the length of the poem. If we try to see the poem with its literary devices, and especially the poem is written in free verse. Let me clarify, the poem is a free verse, जिसके लिए स्पेशली टेड ह्यूज जाने जाते हैं. टेड ह्यूज राइम्ड पोएम को लिखने के लिए नहीं जाने जाते हैं. टेड ह्यूज स्पेशली विदाउट राइम, विदाउट मेट्रिक पैटर्न वाली पोएम्स को लिखने के लिए जाने जाते हैं. सो द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, though the stanza, as I told you, they have the irregular length and the line in their structures. But literary devices के रूप में poem seems to be very rich. There's a use of the figure of speeches like personification, जहाँ पर हमें स्पेशली पर्सनिफिकेशन के रूप में लैबर्नम टॉप को ही पर्सनिफाइड किया गया है. दूसरा सनेक्डकी का भी यूज किया गया है. सनेक्डकी जो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम लोग पार्ट फॉर द होल के लिए जाते हैं, और लैबर्नम टॉप जिसका नाम है पेड़ के टॉप की बात कर रहा है, बट उस टॉप से पूरे पेड़ का जिक्र होता है, पूरे ट्री का जिक्र होता है. तो जब पार्ट स्टैंड्स फॉर अ होल तो हम लोग कहते हैं वहां पर सनेक्डकी का यूज किया गया है. तो यहां सनेक्डकी भी हमें देखने को मिलेगा. एलिट्रेशन का यूज खास तौर से हमको देखने को मिलेगा. एलिट्रेशन एज अ फिगर ऑफ स्पीच कई जगहों पर मिलेगा एलिट्रेशन. इसके साथ साथ ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया स्पेशली इसमें नोटवर्दी है क्योंकि कई जगहों पर बर्ड्स की चरिप का यूज किया गया है, चिटरिंग का यूज किया गया है, ट्रिलिंग्स का यूज किया गया है. इसके साथ साथ मेटाफर का भी जिक्र किया गया है मशीन के रूप में. मेटाफर को मेटाफोरिकली पोएट पोएम में बात करते हैं तो मेटाफर का यूज भी किया गया है. और साथ साथ हमें मेटोनिमी का भी यूज किया जाता हुआ दिखता है. मेटोनिमी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसका भी यूज देखने को मिलता है, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं द इन्फिनिट का. द इन्फिनिट स्टैंड्स फॉर द स्काई, और इस तरह से द इन्फिनिट स्काई को शो करने वाला एक सेंस लेकर आता है जिससे मेटोनिमी के यूज की भी बात होती है. मतलब अगर हम आर्टिस्टिकली देखें द पोएम इज वेरी रिच. थीम पर अगर चलते हैं तो पोएम में ऑलमोस्ट 4 तरह की थीम हमें देखने को मिल जाती है, या 4 काइंड्स ऑफ थीम्स. एक तो हमें सीजन चेंज के साथ पोएम देखने को मिलती है. सीजन चेंज में हमारे पास थीम के रूप में ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा, 4 थीम्स को पोएट कन्वे करते हुए मिलते हैं. 4 थीम्स, जिसमें से पहला थीम होता है
the autumnal change, जो क्लाइमेटिक भी आप कह सकते हैं, सीजन से भी रिलेट कर सकते हैं, सीजनल चेंज भी इसको आप कह सकते हैं, ऑटमनल चेंज। दूसरा, अगर पोएम को हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इस पोएम में एक जो बर्ड है गोल्ड फिंच और जो लैबर्नम ट्री है, दोनों के बीच का रिलेशन मदरहुड को शो करता है। तो दूसरा थीम हमें जो देखने को मिलेगा वो मदरहुड को भी हम इस पोएम में रिलेट करेंगे, 4 थीम्स में से। थर्ड थीम के रूप में नेचुरल ब्यूटी को दिखाएगा जो ट्रांजिएंट है, द ट्रांजिएंट नेचुरल ब्यूटी जो शॉर्ट लिविंग होती है। एक्चुअली कोई भी ब्यूटी या कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं हो पाती हैं, तो ट्रांजिएंट नेचुरल ब्यूटी को भी दिखाएगा और साथ में द रेजोनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के एक और हिस्से को रिफ्लेक्ट करेगा, द रेजोनेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी के हंसी खुशी के पल को भी सामने ले आने की कोशिश। मतलब ये 4 थीम्स अगर हम देखते हैं तो इस पोएम में एक तरह से टेड ह्यूज ने कोरिलेट करने की कोशिश की है। और जैसा हम लोगों ने बात किया, टेड ह्यूज इरेगुलर पोएम्स लिखते हैं बट वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द डेप्थ ऑफ थॉट लिखने के लिए जाने जाते हैं। गुड मॉर्निंग विनीता। और जैसा मैंने कहा, इनकी जो राइटिंग होती है उसमें एक अलग सा डायलेक्ट देखने को मिलता है जिसको हम वेस्ट राइडिंग डायलेक्ट कहते हैं। वेस्ट राइडिंग डायलेक्ट इनकी राइटिंग में देखने को मिलता है और ये बचपन से देखने को मिलता है। मतलब इनके चाइल्डहुड डेज से, जब से ये पोएम्स को लिख रहे हैं, जब से इनका ऑलमोस्ट फर्स्ट कलेक्शन हमारे पास आता है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स के रूप में द हॉक इन द रेन इनका होता है। द हॉक इन द रेन इनका फर्स्ट कलेक्शन होता है, फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन। तो जब से हॉक इन द रेन अपीयर्ड होता है 1957 में, तब से लेकर के अभी तक इनके लिए 1957 में अपीयर्ड होता है, अभी तक इनकी जो पोएम है उसको वेस्ट राइडिंग डायलेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। जो स्पेशल है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, वेस्ट राइडिंग डायलेक्ट इज रिलेटेड टू टेड ह्यूज द पोएट। अब चलिए आते हैं इस पोएम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस वन। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon, yellow September. Setting of the poem is September. तो आपको सेटिंग भी याद रखना पड़ेगा पोएम की। गुड मॉर्निंग निधि। The setting of the poem is September. Sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. September as the time setting of the poem. Time setting for the poem. Okay, जैसा आप सब लोग देखते भी होंगे, समझे भी होंगे, और सितंबर का टाइम जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, अलग ही सेंस में होता है कि जो सूरज की किरणें होती हैं ज़्यादातर तिरछी होती हैं, और अगर आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का वक्त है, तो आप देखते होंगे जो सन रेज होती हैं वो थोड़ी सी येलोविश हो जाती हैं। इसीलिए इन्होंने कहा द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट।
लेबरन का टॉप ऊपरी हिस्सा साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल ही शांत है। अब आप कहेंगे कि सर ये पर्सनिफाइड कैसे हुआ? साइलेंट होना हम लोग जानते हैं, हमारी भाषा है कि हम साइलेंट हो जाएं या हम बोलने लगें या हम शोर मचाएं। ये ट्रीज की भाषा में ये बात नहीं होती। तो पोएट ने एक ट्री को साइलेंट दिखाया। द लेबनन टॉप इज साइलेंट, दिस इज वाई पर्सनिफाइड। अब लेबनन टॉप साइलेंट है, अगर पेड़ का ऊपरी हिस्सा साइलेंट है तो क्या बाकी हिस्सा मूव कर रहा होगा? नहीं ना, बाकी हिस्सा भी क्या होगा? साइलेंट होगा, है ना। मतलब टॉप की बात कर रहा है और उस टॉप से पूरे पेड़ को दिखा दे रहा है। दिस इज वाई साइनेक्डकी, कि एक पार्ट के बारे में बात करके पूरे पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देना साइनेक्डकी का रोल होता है। तो पोएट कहते हैं द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबनन का जो टॉप है वो बहुत ही शांत है, खामोश है और पूरी तरह से एक्चुअली शांत है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ये आफ्टरनून का वक्त है, दोपहर का वक्त है, सितंबर में येलो लाइट चल रही है। मैंने जैसे कहा ना कि ये आफ्टरनून सितंबर का है और नेचुरल, जैसे मैंने आपसे कहा कि दोपहर के वक्त में धूप की रोशनी स्पेशली सितंबर अक्टूबर में अगर आप देखते हैं तो थोड़ी सी येलोविश हो जाती है, थोड़ी सी पीले रंग में आ जाती है। तो उसका जिक्र किया इन्होंने, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग। येलोइंग का क्या सेंस है? ऑटम, जो हमने पहली बात किया था ना, जब पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जिसका क्या मतलब होता है? पेड़ों की पत्तियां गिरने वाली होती। पेड़ों की पत्तियां अगर गिरेंगी तो उसका क्या मतलब होता है? मदरहुड, अगली दुनिया की शुरुआत। क्योंकि जब पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिरती हैं तो नई पत्तियों के आने का टाइम शुरू होता है। तो इन्होंने क्या कहा? अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां इस पेड़ की येलो रंग में ढल रही हैं, धीरे धीरे पीली हो रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके जो सीड्स होते हैं थोड़े पॉइजनस होते हैं। जो लेबनन का जो सीड्स होता है वो पॉइजनस होता है। तो वो सीड्स सारे फॉलन हैं। अब ये सीड्स फॉलन का सेंस क्या हुआ? पेड़ के जब बीज गिरेंगे तभी तो नई दुनिया की शुरुआत होगी, होता है कि नहीं? पेड़ में ऐसे तो पौधे लग नहीं जाते हैं, पेड़ों के बीज गिरते हैं, गिरने के बाद जब जमीन में टच में आते हैं तो फिर धीरे धीरे उनमें लाइफ की शुरुआत होती है। तो एक और जहां पर ट्रांजिएंट, एक और जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो टाइम है वो ओवर हो रहा है। ऑटमनल चेंज की बात हो रही थी। एक और पत्तियां गिर रही हैं, अनाज भी गिर रहा है, उनका दाना भी गिर रहा है, सीड भी गिर रहा है। लेकिन उसी को अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो वो एक नए शुरुआत को भी जगह दे रहा है, क्योंकि पत्तियां पुरानी गिरेंगी तो नई पत्तियां आएंगी, नए पत्तियों की शुरुआत। और अगर सीड्स गिरते हैं, अनाज के दाने गिर रहे हैं, तो इसका भी मतलब यह है कि अगले जीवन की शुरुआत है, क्योंकि वो अनाज जो दाने गिर रहे हैं, जो सीड्स गिर रहे हैं, उससे नए पेड़, नए पौधे तैयार होंगे। तो दो मीनिंग एक साथ साथ, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, जिसको आपने खास तौर से अगर पीवी शेली को पढ़ा होगा तो उनकी ओड टू दी वेस्ट वाइन में इस सेंस का भरपूर जिक्र है कि जब पुरानी पत्तियां जाती हैं तो इसका मतलब है नई पत्तियों के आने का वक्त है। जब पुराने बीज गिरते हैं जमीन पर तो इसका मतलब लॉस तो है, बीज गिर रहा है, बट एक बेनिफिट भी है कि आने वाले टाइम में ये सीड, ये अनाज एक नए पौधे को जन्म देंगे, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, ये जो पेड़ की खामोशी है, ये जो पेड़ की शांति है, वो कब तक है? जब तक कि गोल्ड फिंच, एक छोटी सी चिड़िया होती है,
जब तक कि वो नहीं आ जाती। गोल्ड फिंच के आने के बाद ये खामोशी बिल्कुल टूट जाती है, ये जो शांति की दुनिया है वो टूट जाती है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विटिंग चीरअप, onomatopoeia, twitching, cheer up, a suddenness, a startlement at a branch end। ये कैसे होता है? जैसे मान लो कि पेड़ किसी खामोशी की दुनिया में खोया हुआ है, पर्सनिफाइड है ना, पेड़ किसी खामोशी की दुनिया में खोया है और अचानक से कोई आकर उससे टच कर ले तो क्या होता है? आप सोचो अपने बारे में। आप किसी ख्वाब में खोए हुए, किसी ख्याल में खोए हुए हो, अचानक से कोई आता है और आपको टच कर लेता है, आप बिल्कुल एकदम से जग जाते हैं, अरे ऐसा क्या हुआ? होता है ना, दैट इज द सडननेस। बिल्कुल अचानक से जब लैबर्नम ट्री की खामोशी भरी हुई दुनिया में गोल्ड फिंच की एंट्री होती है विद ट्विटिंग चीरअप, अपनी चहचहाती हुई आवाज के साथ, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड में आकर बैठती है चिड़िया। भाई शुरू में ही तो पहले बैठेगी ना, डायरेक्ट अंदर थोड़ी जाएगी, शुरू में बढ़ती है। ब्रांच के एंड में सबसे आखिरी वाले हिस्से पर जब चिड़िया बैठती है तो ब्रांच हिलने लगता है, और जब ब्रांच हिलने लगता है तो जो खामोशी थी वो खामोशी क्या हुई? खत्म हो गई। तो क्या हुआ? स्टार्टलमेंट। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ बिल्कुल भौचक्का हो गया, एकदम से स्तब्ध हो गया है गोल्ड फिंच के आने से, सडननेस। देन अ स्लीक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रुप्ट, ब्यूटीफुल लाइन देखिए, एज स्लीक एज। अब यहां पर सिमिली का भी यूज देखिए आप, यहां पर सिमिली भी आपको मिल रहा है फिगर ऑफ स्पीच के रूप में, और साथ ही साथ आप देखेंगे रेपिटेशन का भी यूज है। रेपिटेशन का भी यूज कर रहे हैं और साथ साथ एलिटरेशन का यूज हो ही रहा है। यहां पर देखते चलिए, हम लोग लेते हैं स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अगर आप यहां पर एंड अलर्ट आ एंड एब्रप्ट आ का साउंड देख रहे हैं ना, जब वॉवेल साउंड की मैचिंग होती है तो एलिटरेशन होता है, तो यहां पर एलिटरेशन भी है। मैंने रेपिटेशन क्यों कहा? अगर आप देखें तो एंड को रिपीट किया गया, एंड को 2 बार यूज किया गया, इसलिए रेपिटेशन है। मैंने इसको सिमिली क्यों कहा? क्योंकि देन स्लीक एज अ लिजर्ड, लिजर्ड से किसकी कंपैरिजन की जा रही है? गोल्ड फिंच की। जो गोल्ड फिंच है उसको लिजर्ड के रूप में देखा जा रहा है। गोल्ड फिंच जो चिड़िया है उसको एक लेजर्ड के रूप में देखा जा रहा है, तो कंपेयर किया जा रहा है कि ये जो गोल्ड फिंच है वो एक लेजर्ड की तरह अलर्ट है, अब्रप्ट है, बिल्कुल अचानक से एंट्री करती है। शी एंटर्स द थिकनेस, वो पेड़ की गहराई में, थिकनेस में एंटर कर जाती है। पहले कहां बैठी थी? एकदम कॉर्नर पे बैठी थी ना, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे नहीं जा रही है, एकदम से लिजर्ड की तरह बिल्कुल तेजी से साथ में दौड़ती हुई, अब्रप्ट और अलर्ट। आप देखते होंगे लिजर्ड्स को, चाहे कितनी तेजी से चल रही हो लेकिन वो कभी जमीन पर जल्दी गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि अलर्ट होती है और उसका मूवमेंट जो होता है बिल्कुल अब्रप्ट होता है, बिल्कुल सडन होता है, अचानक से बिल्कुल मूव करती है। इसलिए गोल्ड फिंच को कहा बिल्कुल लिजर्ड की तरह अलर्ट है और लिजर्ड की तरह ही अब्रप्ट है, और वहां से कहां जाती है? थिकनेस। किसके थिकनेस में? लैबर्नम के थिकनेस में, अर्थात वो ब्रांच के जो कॉर्नर है वहां से हट करके ब्रांच के अंदर की ओर जाती है, थिकनेस। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और वहां वो उस तरह से काम करना शुरू कर देती है जैसे कोई मशीन। मेटाफर किधर गया? ये अंदर जाने के बाद गोल्ड फिंच एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर देती है। मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग। कौन सी मशीन स्टार्ट हो जाती है? चिटरिंग की। ऐसा लगता है जैसे किसी ने टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया हो, है ना। गोल्ड फिंच
चहचहाना शुरू कर देती है। लगता है गोल्डफिंच अब अकेली नहीं रह गई है। क्यों? अकेली आई थी फिर मदरहुड की दुनिया, शायद और लोग भी आ गए हैं गोल्डफिंच की दुनिया से, और वो सारे मिलकर के ऐसे चहचहाना शुरू कर दिए हैं जैसे किसी ने मशीन को ऑन कर दिया, मशीन को चला दिया हो। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स। और फिर ऐसा लगने लगता है कि ट्रेमर ऑफ विंग्स, ढेर सारे पंखे फड़फड़ाते हुए आ जाते हैं, एंड ट्रेलिंग्स, और सारे पेड़ों पर, सारे ब्रांचेस पर एक तरह से इन चिड़ियों के ट्रिल करने की, खोदने की, चहचहाने की, एक तरह से खेलने की आवाज गूंजने लगती है। मतलब पूरे पेड़ पर, अभी पेड़ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल खामोश था, कुछ नहीं था वहां पर। एक गोल्डफिंच आती है, धीरे धीरे वो पेड़ की थिकनेस में जाती है, शायद उसकी दुनिया वहां पर अपने क्रिएशन में लगती है। फिर और ढेर सारे गोल्डफिंच वहां पर हो जाते हैं और सारे मिलकर के चहचहाना शुरू कर देते, गीत को गाना शुरू कर देते हैं। ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट और उनके चोट से खटखट की आवाज, गीत संगीत शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। जो ट्री पूरी तरह से, पहली लाइन में जाइएगा, शांत था, वो पूरा ट्री ट्रेम्बल करने लगा, कांपने लगा। एंड थ्रिल, और ये जो कारनामे हो रहे हैं ना गोल्डफिंच से, कभी खटखटाने की, कभी पंखों को फड़फड़ाने की, कभी आवाज को चहचहाने की, इनसे गोल्डफिंच जो है थ्रिल्स हो जा रहा है, रोमांचित हो जा रहा है। उसको अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, हमारे पास कोई है जो हमें खुशियां दे रहा है, जो हमको आनंद दे रहा है। क्योंकि पेड़ों की खूबसूरती इन चिड़िया से है, और इन चिड़ियों की जिंदगी इन पेड़ों से है। बस एक ही चीज है कि ये पेड़ को हर जगह अपना मानती है, हर पेड़ को अपना मानती है चिड़िया, और हर पेड़ चिड़िया को अपना मानती है। इसलिए किसी पेड़ से ना एकदम से लगाव होता है और ना ही किसी पेड़ से बिल्कुल जुदाई का वक्त होता है, जुड़े हुए ना होने का वक्त होता है। कहने का सेंस है कि जुड़ते भी हैं और अलग भी होते हैं। अभी जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं जैसे ये लेबर्नम ट्री पूरी तरह से इसी गोल्डफिंच की फैमिली का है, और पूरी फैमिली लग करके इस पूरे पेड़ को कांपने पर, हिलने पर मजबूर कर दे रहा है, थ्रिल्स और रोमांचित कर दे रहा है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। समझने की कोशिश करिए फिर से, इंजन किसको बोला? लेबर्नम को। ये लेबर्नम को बोल रहा है कि ये इंजन है उसकी फैमिली का। क्यों? क्योंकि इसी पेड़ के सहारे तो उनकी दुनिया चलती है। जैसे एक इंजन के सहारे पूरी गाड़ी चलती है, उसी तरह से पेड़ के सहारे तो एक चिड़िया की जिंदगी चलती है। उसी में उसको रहना है, उसी में उसके बच्चों का पालन पोषण होना है, वही उनको धूप से बचाता है, वही उनको बारिश से बचाता है, वही उनको ठंडक से बचाता है। तो ये जो पेड़ है वो अपने आप में एक इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, इसलिए वो इस इंजन को अपने पूरे खुशी के साथ स्ट्रोक करती है, अपने चोंच से सहलाती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। फ्लर्ट्स आउट, मुस्कुराते हुए, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई ब्रांच एंड पर आ जाती। समझने की कोशिश करिए, अभी ब्रांच के इन में थी, थिकनेस में थी, खुशियां मना रही थी, मौज मस्ती मना रही थी, सबके साथ मिलकर खुशी थी, अपनी लाइफ को शुरू कर रही थी। लेकिन यह भी निश्चित है कि मिलना और बिछड़ना, दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये रेजोनेंस ऑफ लाइफ है, रेजोनेंस ऑफ लाइफ चल रहा है। खुशियां आई ना, पेड़ भी खुश, ब्रांचेस भी खुश, टॉप भी खुश, बॉटम भी खुश, लेबर्नम पर बैठी हुई गोल्डफिंच भी खुश, उसकी फैमिली भी खुश, सारे खुश हैं। अब अलग होने का वक्त आ गया, इसलिए लेबर्नम टॉप की ब्रांच के एंड में आ जाती है मुस्कुराती हुई, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। जब ब्रांच के एंड में आती है तो लगता है, जैसे होता है ना चिड़ियों को, कभी ध्यान से देखिए तो ब्रांच के एंड में आ जाती, लगता है पत्तियां उसको रोक रही होती हैं, आड़ रही होती हैं कि बाहर नहीं देख पाएंगे। तो क्या करती हैं वो? अब पत्तियों से अंदर झांकती है, कुछ ऐसा झांक करके देखती है कि सब ठीक है, अगर ठीक है तो उड़े। फिर देखा है, कभी नोट किया है?
दैट इज व्हाट इज हियर। इन्होंने क्या कहा, आइडेंटिटी मास्क। ऐसा लगता है ये बर्ड लेबनन टॉप के लास्ट में आकर के बाहर जाने के लिए अपने मास्क को दिखा रही है कि भाई देख लो, पहचान लो, हम ही हैं गोल्ड फिंच, अब हमें जाना है ना, बाहर की ओर अपने मास्क को दिखा रही है। शोइंग हर बार्ड फेस, अपने खुले हुए चेहरे को दिखाती है। आइडेंटिटी मास्क, ये खुला हुआ चेहरा नहीं है, उसका ये आइडेंटिटी मास्क है, उसका ये पहचान है, जिसका मतलब है अब लेबनन को छोड़ करके ये गोल्ड फिंच जाने वाली है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा जो थीम था, ट्रांजिएंट नेचुरल ब्यूटी। कुछ पल के लिए जब तक यहां चिड़िया थी तब तक जो लेबनन था वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, खिलखिला रहा था। और जैसे ही ये चिड़िया उड़ गई, देखिएगा फिर से वही दुनिया आ जाएगी। तो एक तो साइकिलिंग जो प्रोसेस है नेचर का, कि कोई भी चीज यहां पर परमानेंट रहने वाली नहीं है, और दूसरी जिंदगी का हिस्सा है रेजोनेंस ऑफ लाइफ। जिंदगी में ये आता ही रहता है, खुशियों का पल भी आता है, गम का पल भी आता है। जब हम साथ होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, जब हम साथ होते हैं तो खुश होते हैं। लेबर्नन अकेले खुश नहीं हो सकता, गोल्ड फिंच अकेले खुश नहीं हो सकती। गोल्ड फिंच की खुशी लेबर्नन में है और लेबर्नन की खुशी गोल्ड फिंच से है। दोनों जब एक दूसरे को छोड़ते हैं तो एक खामोशी उनकी दुनिया में एंटर कर जाती है। जैसे यहां पर देखिए, देन शी फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड, फिर वो हंसती खिलखिलाती हुई ब्रांच के एंड पर आ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ऐसा लगता है कि वह लेबर्नन पर बैठे बैठे अपने आप को बाहर जाने का इंडिकेशन दे रही है कि हम अब बाहर जाने वाले हैं, यह हमारा आइडेंटिटी मास्क है, अब देख लीजिए, पहचान लीजिए। देन विद एरी डेलिकेट विशल, फिर बिल्कुल अचानक से एक खूबसूरत सा वो विशल करती है, साउंड करती है, चिरप विस्परिंग्स, और चहचहाते हुए कुछ विस्पर्स करती हैं। किससे? आपस में। शायद और भी जो वहां पर गोल्ड फिंच है ना, उनको भी कुछ इशारा किया गया है अपने विशल से, कुछ कहा गया होगा विशल से, कुछ समझाने की कोशिश की गई होगी अपनी विशलिंग के साउंड से। शी लॉन्चेस अवे, और ऐसा विशल कहकर वहां से चलने की कोशिश टुवर्ड्स द इन्फिनिट, अनंत दुनिया की ओर, आसमां की ओर। इन्फिनिट कौन है? आसमां है। इसीलिए हम लोगों ने कहा इन्फिनिट के लिए जो वर्ड यहां यूज किया गया है वो आसमां के लिए, दैट इज मेट्रोनिमी, सिंबॉलिकली यूज किया गया। द पॉइंट इज, आप लास्ट का पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जब जुदा होने का वक्त आता है, जब अलग होने का वक्त आता है, तो आप कभी देखिए घर में जब लोग जुदा हो रहे होते हैं तो कैसे जुदा होते हैं? एक दूसरे को गले मिल रहे होते हैं, एक दूसरे को प्यार से समझा रहे होते हैं कि परेशान ना होना, बस मैं जा रहा हूं और उसके बाद फिर मिलूंगा या मिलूंगी, अब परेशान मत होना। एक दूसरे को हम समझाते हैं कि नहीं, दैट इज द लास्ट लाइन, आप समझने की कोशिश करिएगा। देन विद एरी डेलिकेट विशल, अचानक से बिल्कुल प्यार भरे अपने विसल के साथ, अपनी आवाज के साथ, शेरब विस्परिंग, चिड़ियों का आपस में कानाफूसी शुरू होता है, पेड़ के साथ कानाफूसी शुरू होता है, पेड़ को अलविदा कहने का वक्त होता है उनके लिए। शी लॉन्चेस अवे, और फिर पेड़ को बाय बाय करके, पेड़ को बाय बाय कह देती है, बस ठीक है, अब हमारा तुम्हारा इतना ही मिलना था, अब हम लॉन्चेस अवे चलते हैं टुवर्ड्स द इन्फिनिट, क्योंकि एक दुनिया तुम हो और एक दुनिया हमारा आसमां है। समझने की कोशिश करिएगा, ये इंसानी जीवन से भी रिलेट करता है। इंसानी जीवन भी इस जमीन पर आता है, अर्थ पर आता है, अपने जीवन को जीता है, उसके लिए एक खूबसूरत वक्त होता है। जो दूसरा सेंटेंस से समझने की कोशिश करिए, दूसरा स्टेंजा, वो काफी लंबा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये वो स्टेंजा है जो हमें बताता है व्हाट लाइफ इज एंड हाउ कैन वी शेप आवर लाइफ। ये हमें बताता है, पहला तो खामोशी है, फिर दूसरी जो दुनिया है, दूसरा स्टेंजा इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यही तो सब कुछ करना है। ये जो हमारी लाइफ का, आप कह सकते हैं 15 साल से लेकर के जो 50 साल की एज होती है, लगभग 35 साल हमारी जिंदगी का जो होता है, वही वो जिंदगी का वक्त होता है जिसमें हम सब कुछ करते हैं।
अपने करियर को बनाते हैं, अपने आप को बनाते हैं, अपनी सोसाइटी को बनाते हैं, अपने लोगों को बनाते हैं, अपनी लाइफ को बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद हम कुछ बनाने लायक लगभग रहते नहीं हैं और इसके पहले कुछ बनाने की हमारे पास समझ होती नहीं है। इसलिए दूसरा जो स्टैंजा है, सबसे बड़ा स्टैंजा दिया गया है कि यहां पर हम लोग क्रिएशन का काम करते हैं, खुशियों का काम करते हैं, और ये खुशियां फिर से क्षणिक है। लास्ट में एक दूसरे को अलविदा कहना ही पड़ेगा, लास्ट में एक दूसरे को छोड़कर इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इन्फिनिट की ओर जब सफर करना हो तो बड़े सुकून के साथ चलना है, क्योंकि इन्फिनिट आसमां ही तो हम सबका पड़ाव है। ये पेड़, ये जमीन जहां हम हैं, ये तो कुछ क्षण के लिए है। जहां हम आए हैं खुशियां मनाएंगे, अपने जैसे कुछ लोगों को इस दुनिया में छोड़ेंगे, अपने प्रतिबिंब के रूप में, अपने सिंबल के रूप में, और फिर इस दुनिया को अलविदा कहकर ऊपर जो दुनिया है उसी दुनिया में तो उड़ जाना है, उसी दुनिया में तो चले जाना है। इन्फिनिट की ओर तो सब किसी को जाना है। एंड द लेबनन सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जैसे ही हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं वैसे ही लेबर्नन जैसा जो ट्री होता है सबसाइड्स टू एम्प्टी, पूरी तरह से खामोश हो जाता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है। वो लेबर्नन जो खुद थ्रिल हो रहा था, वो लेबर्नन जो खुद खुश हो रहा था, वो लेबर्नन जो खुद गोल्ड फिंच एंड कंपनी के साथ झूम रहा था, जैसे ही गोल्ड फिंच उसको छोड़ के जाती है, वह भी खामोशी और खालीपन की दुनिया में सबसाइड्स, डूब जाता है। मीन्स फिर से खामोशी, फिर से तन्हाई, फिर से अकेलापन। दैट इज द लास्ट ऑफ द लाइफ। ये खुशियों का वक्त कुछ वक्त के लिए ही होता है, फिर सब कुछ छोड़ दिए जाना पड़ता है, सब कुछ खत्म हो जा रहा होता है, और हम सबको इस दुनिया को अलविदा कहना होता है। जब हम इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, जैसे कहना होता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेबर्नन के साथ हमेशा गोल्ड फिंच नहीं रह सकती है। गोल्ड फिंच का एक टाइम है जो लेबर्नन के साथ वो स्पेंड करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब का टाइम है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का, हमेशा हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। एक न एक वक्त होगा, कभी क्षणिक विदाई होती है तो कभी शाश्वत विदाई होती है। विदाई जरूरी होती है और वो होता है। जिंदगी का यही दस्तूर है। अकेलेपन से हम साथ में आते हैं और साथ में रह करके इस दुनिया में कुछ निर्माण का कार्य करते हैं, अपने ओर से योगदान देते हैं, और फिर फाइनली इस दुनिया को अलविदा भी कहते हैं। और अकेले जब हम चले जाते हैं तो जिनके साथ रहकर कभी खुशियां मनाए होते हैं, वो लोग भी अकेलेपन, तन्हाई और खालीपन की दुनिया में डूब जाते हैं, क्योंकि उनका साथी उनसे दूर चला गया होता है। तो हमारे जाने के बाद हमारे लोग जिस तरह से खामोश होते हैं, शांत होते हैं, अकेले होते हैं, कुछ उसी तरह से अकेलापन महसूस कर रहा है लेबर्नन गोल्ड फिंच के जाने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स in the next class, and as you see, it's a free class for you all. So those who are interested for the class, you simply message us on our telegram number 9369542072 with your name and your course name. We will add you there in the group, and simply you will find the link of the class every morning between 7 to 8. That's all from me. Thanks a lot for watching. Keep watching, keep learning, and keep working hard. Thank you very much.